ادھر دیکھیے وہ چینل والے جلدی نعرہ نہیں لگاتے، لیکن آپ لوگ چپ چاپ سے روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے، وہ بیچارہ چینل بھی چلا رہا اور نعرہ بھی لگا رہا۔ آپ کو نعرہ لگانا چاہیے، اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو اب وہ حدیث سنیے کہ میرے نبی کے ماں باپ کیا تھے، بولو کیا تھے، جو بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھے تھے جنتی، کلمہ نہیں پڑھے تھے مسلمان نہیں تھے۔ ابے پاگل کی اولاد، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نہ تو اعلان سنا تھا نہ نبوت کا زمانہ پایا تھا، کیونکہ میرے نبی جب 5-6 سال کے تھے تو امی دنیا سے چلی گئی، اور جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے ابا حضور دنیا سے چل بسے، تو نہ اعلان سننے کا موقع ملا نہ نبوت کا زمانہ پایا۔ لیکن ہاں اس وقت وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، موحد تھے، خدا پرست تھے، کبھی پتھر کی پوجا نہیں کی، کبھی بت پرستی نہیں کی، ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ ساری حدیثیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک حدیث کو غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ کا انعام، لیکن کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے۔ اگر اجازت ہے تو میں حدیث سناتا ہوں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکات شریف، زور سے بولو مشکات شریف، جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513، ترمذی شریف جلد ثانی، باب المناقب، صفحہ نمبر 202 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انه جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول الله فقال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا فخيرهم بيتا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ ہے نعرہ، ہاں سیٹو کا نعرہ، نام ہے سیٹو لیکن بڑا ہے جھیٹو، بڑا نیک لڑکا ہے، یہ میں نے محبت میں کہہ دیا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا شریف ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، یہ حضرت کا دیوانہ ہے۔ کوئی اس علاقے کا جلسہ نہیں جہاں یہ سیٹو نہ جاتا ہو، حضرت کا بہت بڑا فین ہے، دیوانہ ہے۔ ماشاءاللہ میری طرف دیکھیے، بہت شاندار، میں نے آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے، اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے؟ اجازت ہے تو مطلب سنیے۔ حضرت عباس جو نبی کے چچا جان ہے، جلدی بولو، جو نبی کے چچا جان ہے، ایک دفعہ نبی کے پاس آئے، ادھر دیکھیں، جیسے نبی کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا نبی کا چہرہ غصے سے لال بنا ہے۔ کیا بنا ہے؟ جلدی بولو۔ نبی کا چہرہ مبارک غصے سے کیا بنا ہے؟ سرخ بنا ہے، لال بنا ہے۔ ادھر دیکھیے، حضرت عباس نے جب دیکھا کہ نبی کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، غصے سے چہرے سے لگ رہا ہے خون ٹپک رہا ہے، سرخ بنا ہے چہرہ، نبی مسجد نبی میں گئے، منبر پہ تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا کے بعد صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کیا پوچھا صحابہ؟ میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو نبی نے فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، او صحابہ میں اللہ کا رسول ہوں، حق ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، سچ ہے،
मगर यह भी सच है कि मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, मैं अब्दुल्ला का लाडला हूं, मैं अब्दुल्ला की आंखों का तारा हूं, तारा, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, बेटा। मेरे मां बाप के बारे में जो मुनाफिक इधर उधर बोल रहे हैं, उन कुत्तों से कह दो कि अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतरीन मखलूक में पैदा किया, फिर अल्लाह ने दो गिरोह बनाए, सबसे बेहतरीन गिरोह में मुझको भेजा, फिर अल्लाह ने कबीले बनाए, सबसे बेहतरीन कबीले में मुझको भेजा, फिर अल्लाह ने खानदान बनाए, जो उस वक्त सबसे आला खानदान था, मुझको उसके दरमियान भेजा, फिर अल्लाह ने घर बनाए, जो सबसे साफ सुथरा पाकीज़ा घर था, मुझे उसमें भेजा, फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए, जो उस वक्त सबसे अच्छे माँ बाप, नेक माँ बाप थे, मुझको उनके पास भेजा, उनकी पुश्त में भेजा, उनके शिकम में भेजा। कान खोलकर सुन लो, मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है, मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। हजरात, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने क्या कहा कि मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। हजरात, नबी ने अपने माँ बाप को बेहतर कहा। अगर काफिर होते उनके माँ बाप तो नबी कभी बेहतर नहीं कहते। नबी ने अपने माँ बाप को बेहतर कहा। इस हदीस से पता चला कि नबी के माँ बाप काफिर नहीं। जो नबी के माँ बाप को काफिर कहे वो गुमराह है, वो बदमजहब है, वो जहन्नमी है। उससे कहिए तौबा करो तौबा। नबी के माँ बाप काफिर नहीं बल्कि मुवाहिद थे, मुवाहिद। वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, क्योंकि न तो ऐलाने नबुवत सुना न नबुवत का जमाना पाया। लेकिन और भी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और मेरी तकरीर आप बर्दाश्त करें, जल्दी से सुन लीजिए। सारा मजमा बिल्कुल अदब के साथ सुने। एक मर्तबा और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन ले। अल्लाह अल्लाह। दुर्रे मंसूर, दुर्रे मंसूर, दुर्रे मंसूर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424, पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलुनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशयबु शुबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतकिलू मिन अस्लाबित ताहिरीना इला अरहामित ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात, मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, पहली वाली जो हदीस, इससे पहली वाली मैंने सुनाई, ये नबी के चचा थे। कौन थे जल्दी बोलो? नबी के चचा ने इस हदीस को बयान किया। और अब जो मैं बयान करने जा रहा हूं, यह नबी के चचा के बेटे ने इस हदीस को बयान किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु यह फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया। क्या फरमाया नबी ने? सुनिए, बड़ी शानदार हदीस। नबी फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, हजरत आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों से मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में जलवागर हुआ, जलवा अफरोज हुआ, इस दुनिया में आया, सब के सब
पाक थे, सब के सब पवित्र थे, सब के सब मुवहिद थे, सब के सब तय्यिबो ताहिर थे, सब के सब खुदा परस्त थे, सब के सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। अब आप बताइए कि हम हदीस की माने कि खबीस की माने? अरे बोलो। हदीस कहती है, नबी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों से मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में आया, सब के सब तय्यिबो ताहिर थे, सब मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे, सब खुदा परस्त थे, सब मुवहिद थे, सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, अल्लाह के एक होने पर ईमान रखते थे, कोई बुत परस्त नहीं थे। कोई साबित कर दे कि नबी के माँ बाप ने कभी बुत परस्ती की है तो मैं उसको जो कहेगा इनाम दूंगा। कसम खुदा, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है जो ये साबित कर सके कि नबी के माँ बाप ने कभी बुत परस्ती नहीं की। और जब साबित नहीं कर सकते तो अबे पागल की औलाद, नबी के माँ बाप के मुवहिद होने पर एक हदीस नहीं बेशुमार हदीसें गवाह है कि नबी के माँ बाप मुवहिद थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। अब आगे चलिए, नबी ने जब ऐलान किया, जल्दी बोलो, नबी ने जब ऐलान नबूवत किया उसके बाद क्या हुआ? नबी ने माँ बाप को कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते ही थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वाया। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं? सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह गौर से सुन लो। खसाए से कुबरा जिल्दे सानी हज्जतुल विदा का बयान, सफा नंबर 67 की हदीस सुनो। अल मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100 पर यह हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु अन युहय्या अबवैहि फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा अमातहुमा अल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। नबी ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। अल्लाह से रो रो के दुआ किया, अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप ने ऐलान नबूवत नहीं सुना, नबूवत का जमाना नहीं पाया, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, तुझ पर ईमान रखते थे, मुवहिद थे। ए अल्लाह तुझ पर ईमान रखते थे, तुझसे मोहब्बत करते थे, मुवहिद थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला, न ऐलान सुना, न नबूवत का जमाना पाया। मेरी तमन्ना है कि मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, ताकि मैं उनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वा सकूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वा सकूं, पूरा कलमा पढ़वा सकूं। अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमाई, नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, दोनों ने ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ा, फिर दोनों पर मौत तारी हो गई। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म होने वाली है, ये एक दिन का मामला नहीं है। गुलाम रब्बानी की घड़ी हजरत की बारगाह में है। मेरे हजरत इधर देखिए, कसम खुदा आप लोग जितना भी नाज करो कम है। मालदा वालों, हजरत से मोहब्बत करो, अकीदत रखो। ये देखो हजरत कितनी परेशानियों से आपके मालदा आते हैं और रातों रात जाग करके सिर्फ इसलिए जागते हैं ताकि आप लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाया जाए, आपको नबी से जोड़ा जाए।
आपको अल्लाह ताला से जोड़ा जाए, आपको दीन इस्लाम से जोड़ा जाए, आपके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन किया जाए। हजरत से मोहब्बत करते रहो, इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है। आले रसूल से मोहब्बत रखना, नबी से मोहब्बत रखना है, और इनसे बोग्ज रखना, नबी से बोग्ज रखना है। इधर देखो, आप में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। आपको पता है हम लोग क्या है? नबी के गुलाम। हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या है? अरे बोलो सारा मजमा, हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या है? अरे जोर से बोलो हम लोग क्या है? नबी के गुलाम है। उलमा क्या है? जल्दी बोलो, नबी के गुलाम है। मौलाना बाजुद्दीन साहब नबी के गुलाम, मौलाना अस्माउल कलीमी साहब नबी के गुलाम, मुफ्ती इकरामुल हक साहब किबला नबी के गुलाम, आप नबी के गुलाम, मैं नबी का गुलाम, सब नबी के गुलाम है। इधर देखिए, लेकिन आप गुलाम तो हैं ही, नबी की औलाद भी है। मेरा नबी से एक रिश्ता और आपका मेरे नबी से, जोर से बोलो, दो रिश्ता। एक गुलामी का और दूसरा, जल्दी बोलो, औलाद होने का भी शरफ हासिल है। तो औलाद रसूल से मोहब्बत रखना, नबी से मोहब्बत रखना है। बिल्कुल अपने सीने में नबी की मोहब्बत पैदा कीजिए और औलाद नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन रखिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करूंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, बस अब मेरी तकरीर खत्म हो गई। अगर इजाजत दीजिए, सिर्फ बस 5 मिनट में एक और हदीस सुना दूं। और बोलो इजाजत है? 5 मिनट में, या अगर हो सकता है हुजूर का हुक्म हो खत्म, तो बस अब मेरी तकरीर यहीं पर खत्म हो रही है। फिर इंशाअल्लाह कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। जहां रहिए नबी से मोहब्बत करते रहिए, आले नबी से मोहब्बत करते रहिए, अपना ईमान अकीदा नबी के बारे में दुरुस्त रखिए और नबी के माँ बाप के बारे में भी दुरुस्त रखिए। नबी के माँ बाप इस दुनिया में सारे जहान से बेहतर आए। उनके माँ बाप पर उंगली उठाना गुमराह होने की निशानी है, जहन्नमी होने की निशानी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए।